Hello students, I am Dr. Bandita Rath again, HOD Department of Zoology, Rajdhani College, Bhubaneswar. So, this is the last class for your digestion and absorption, and till now we have almost dealt with 80% of whatever is there in your courses related to your digestion and absorption. The only thing that is remaining is your absorption portion and your digestive disorder. So, in today's class we will be starting from your digestion that is taking place inside small intestine, because in last class we had dealt with your digestion which is taking place in your stomach. So, today we will be starting with digestion of food in small intestine. So, again to recapitulate, this is a small intestine over here. It starts with the duodenum, then there is the jejunum, and this portion over here is the ileum, and if you remember, this is a longest coil structure which is present in a digestive system. And why it is coiled? Because of its long structure. To accommodate this part of intestine, it has been coiled. As we have been discussing in our earlier classes, digestion is of two types, mechanical digestion and your chemical digestion. With respect to small intestine 2, we will be dealing with mechanical digestion and chemical digestion. First, let us deal with your mechanical digestion. Inside small intestine, your two type of movements are taking place. First is segmentation and second is a migration motility complex. Ama small intestine bhitare mechanical digestion pai dita type of movement देखा जाई थाए. कौन कौन? गोटे होची segmentation आउ गोटे होची migration motility complex. So आमे एबे देखि नबा फर्स्ट segmentation टी कौन. Segmentation are localized mixing contraction that occurs in portion of intestine distended with large volume of chyme. ता माने कौन? ता माने होची ए जो सेगमेंटेशन मूवमेंट आमे जो कहूचे स्मॉल इंटेस्टाइन रे होची से केमिति होची सेटा होची गोटे लोकलाइज मूवमेंट गोटे पोर्शन रे. लोकलाइज आमे काहे कि कहूचे कारण एटा गोटे पोर्शन रे से होची गोटे जागा रे सीमित, सेति पय आमे सेटा को लोकलाइज कहूचे. इट इज अ लोकलाइज मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन. मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन एटी काहे कि कहला कारण से खाद्यटा को मिक्स करिबारे हेल्प करची, सेति पय आमे एटा को मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन कहि कि कहि थाउ. सो दिस मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन इट occurs when a portion of the small intestine is distended with food, large amount of food. जेतेबेले खाद्यटी आमर स्टमक रु स्मॉल इंटेस्टाइन को आसी थाए कौन होई थाए आमर स्टमक टी टिके सॉरी आमर स्मॉल इंटेस्टाइन टी टिके फुली जाई थाए. जो खाद्य जो एक्सेस अमाउंट ऑफ खाद्य जो स्मॉल इंटेस्टाइन को आसिला ता द्वारा आमर स्मॉल इंटेस्टिनल वॉल टा टिके फुली जाई थाए बा डिस्टेंडेड हेई जाई थाए. आ जेतेबेले ए डिस्टेंशन हला सेई समय ठू आमर सेगमेंटेशन मूवमेंट टा आरंभ हेई थाए. सो लेट अस सी इन डिटेल हाउ दिस segmentation movement is occurring. The segmentation by this process of segmentation, your mixing of your chyme with your digestive juices or your intestinal juices is taking place, and also this movement brings the food in contact with the mucosa lining of the small intestine. ए segmentation movement द्वारा आमर दुईटी काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन रे. फास्ट होची से आमर इंटेस्टिनल जूस सहित फूड को मिक्स करता है. जेतेबेले इंटेस्टाइन को आसीगला खाद्य गुड़ाक आमर इंटेस्टाइन रे खाद्य डाइजेशन हुए आउ कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन भी आमर इंटेस्टाइन रे हुए. आमर डाइजेशन टा शेष हुए भी आमर इंटेस्टाइन रे. सो शेष हो सारा पर आमर आउ गोटे इंपोर्टेंट काम रहिला एब्जॉर्प्शन. माने जो फूड टा डाइजेस्ट हो जाइछि सेटा आम बॉडी भीतर को एब्जॉर्ब हेबा भी दरकार, सेटा भी आमर स्मॉल इंटेस्टाइन करि थाए. तो ये जो सेगमेंटेशन मूवमेंट जो होची से खाद्यटी को इंटेस्टिनल जूस सहित तो मिसई देला डाइजेशन पाई, तापरे डाइजेशन सरीबा परे से ये जो फूड गुड़ा को आमर इंटेस्टाइन रो वॉल जो इंटेस्टिनल वॉल जो अच्छी म्यूकोसा ता पाखु को भी नहीं आसला. काहे कि कारण आमर म्यूकोसा रे आमर एब्जॉर्प्टिव सेल अछंती. आ ए एब्जॉर्प्टिव सेल गुड़ा को जो डाइजेस्टेड खाद्य अच्छी से माने एब्जॉर्ब करि नियंती आ ब्लड स्ट्रीम भीतर को छाड़ी दियंती. So this is a very important type of your movement that is taking place inside your
small intestine. Now let us see in detail how this movement is taking place. Suppose food is coming inside your, this is your small intestine. Suppose food enters your small intestine. Because of this entering of food, the wall of the small intestine bulges out or it becomes distended. Because of this distension, what happens is the circular muscle at many places it starts contracting. As we are seeing over here, the circular muscle over here, over here, over here and over here, it has started to contract. Because of this localized contraction of circular muscle, it is dividing the food into your small portions inside the small intestine. So, because of this the contraction of the circular muscle, what is happening? Your food bolus which is over here, if we are focusing over here, the wall of the small intestine over here is distended. आमर स्मॉल इंटेस्टाइन भितर को जिते खाद्य आसला स्मॉल इंटेस्टाइन रो वॉल टा फुलीगला आउ ए फुलिबा फल रे आमर सर्कुलर मसल गुड़ाक जो अच्छा आउ थे मन पकई देवाई चाहे आमर इंटेस्टिनल वॉल रे दीटा टाइप ऑफ मसल अच्छा सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल जहाँकि डाइजेस्टिव एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक रे आमर अच्छा तो ये जो सर्कुलर मसलटा कौन कर गुड़ाए जगार कंट्राक्ट होगा आरंभ कर कंट्राक्ट होगा फल कौन हो गोटे गोटे जगार जोटि की खाद्य अच्छी से जगार वॉल गुड़ाक इंटेस्टिनल वॉल गुड़ाक एबे भी फुला अच्छी टिके डिस्टेंडेड होके अच्छी तो यही जगह गुड़ाक कौन हो जगह गुड़ाक आमर एबे लोकलाइज कंट्राक्शन पुणी आरंभ हम माने जोठी आमर फुला अच्छी से जगार पुणी सर्कुलर मसलटा कंट्राक्ट करवा आमे देखि ना मुझे गोटे स्ट्रेट लाइन ए लेजर पॉइंटरटा को तुम मैंने जदि भल से जदि देखि पारुछ तो यू देख ये आमर सर्कुलर मसलटा पुणी कंट्राक्ट होती आमको देखाई तार कंट्राक्शनटा सो जिते बड़े ये कंट्राक्शन होती कौन हो जो फूड मटेरियल ये जो थिला ये फूड मटेरियल गुड़ा को अलग कलर कहीं दिखाई आमर बेटर अंडरस्टैंडिंग पाए आमर मिक्सिंग प्रोसेसटा केमिति होची जणाइबा अलग अलग कलर दिखाई नहले आमर इंटेस्टाइन भितर एमती अलग अलग कलर फूड मटेरियल गुड़ाक न था सो जिते बड़े आमर ये लोकलाइज कंट्राक्शन है और व्हेन द सर्कुलर मसल ओवर हियर इज कंट्रैक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग हाफ ऑफ द फूड इज गोइंग upward and half of the food is coming downwards and we can see over here look half of this green food they are upward and half of the green food it is downwards. So we can imagine how mixing of food is taking place. एथुरु आमे imagine कर परिबा आम खाद्यटी किमिति mix हेबा आरंभ होची ए जो segmentation process रू. Again you will see the intestine is bulged over here or distended over here. So wherever it is distended again the circular muscle it will be contracting and now further mixing of the food is taking place and because of this process your complete mixing of food will be taking place. ये जो सेगमेंटेशन टा को बहुत भल से बुझी पाए आमे इमेजिन करबा गोटे लंबा बेलून तमाने गोटे लंबा बेलून तमाने देखि किणी तो से बेलून टारे जेते बेले टिके कम एयर प्रेशर थाए आमे से बेलून रो मझीटी को जदी चिपी दबा कौन होउची सो मझीटी को आमे से बेलून रो मझीटी को चिपी देले से मझी पोर्शनटा चिपी हो जाउची आ हमर जो एयर जो थिला बेलून भितरे से दी साइड रे एक्युमुलेट हो जाउची दी साइड फुली जाउची मझी रे किंतु चिपी हो जाउची एबे आमे कोन करबा जो दी साइड जो फुला अछि सेठी आमे प्रेशर देबा सेठी आमे जदी प्रेशर देबा कोन होउची से जो दी साइड रो एयर जो अछि आधा आधा एयर एबे मझी को चली आछंती मझीटा फुली जाउची आ दी साइड रे अल्प एयर अछंती जो से माने भी फुला होइकी रहंती आ हमर कंट्राक्शनटा एबे एई दीटा जगह को आसी जाउची एगेन आउ थे आम मझीरे प्रेशर देबा सो ये एयरटा जो आग पछ जो होउची आमर मिक्सिंग होउची इन द सेम वे आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे मध्य ये जो सर्कुलर मसल गुड़ाक कंट्राक्ट होउचंदी गुड़ाए जगार आमर फूडटा बहुत भल से मिक्स हेबारे आमको हेल्प करूची. It is mixing the food and after digestion it is also bringing the food in close proximity with the proximity with the mucosa
so that the food can be absorbed. So this segmentation occurs most rapidly in duodenum. एटा बहुत rapidly आमर duodenum रे होता है, about 12 times per minute and progressively slows to about 8 times per minute in your ileum. Now let us have a look at another type of movement that is occurring inside small intestine. It is a migration motility complex. So this migration motility complex, how does it occur? What happens is, after digestion, most of the food is absorbed by the small intestine. So when the food is absorbed by the small intestine, the distension of the small intestine, it narrows down, or the distension of the small intestine, it becomes less. So when the distension of the small intestine is becoming less, the segmentation movement stops and your migration motility complex begins. ता माने कौन, आमर जेते बेले फूड गुड़ाक डाइजेस्ट हो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन रे, आमर एब्जॉर्प्शन भी आमर स्मॉल इंटेस्टाइन करूची, खाद्यटी डाइजेशन पर जदि एब्जॉर्ब हो गला, आमर लुमेन भितर जो खाद्य अमाउंट अच्छी ताहा कमी गला। लुमेन भितर खाद्य अमाउंट कला माने आमर जो स्मॉल इंटेस्टाइन आगुरु जो फुला हेकी थिला, टिके बाहर को हेकी थिला, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन फुली जाइथिला कि तार वॉलटा टिके फुली जाइथिला। सो एबे खाद्यटा एब्जॉर्ब जो हे गला, से फुलाटा कमी जाउची। जेतेबेले ई फुलाटा कमी जाउची, आमर सेगमेंटेशन मूवमेंटटा बंद हो जाउची। सेगमेंटेशन मूवमेंट बंद है कि आमर एबे माइग्रेशन मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स जोटा ए मूवमेंटा आमर आरंभ होची। दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आम माने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जमिति आगुरु आमे डिस्क्राइब करथिले, इट इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर सर्क्युलर मसल एट द सुपीरियर एंड ऑफ द बॉलस। आमर सुपीरियर एंड ऑफ द बॉलस कोटा, आमर जोठू बॉलस रो ऊपर मुंडटा को आमे कहबा सुपीरियर एंड, आउ बॉलस रो पछ मुंडटा को आमे कहबा इनफीरियर एंड। तो सुपीरियर एंड रे आमर सर्क्युलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करूची, कॉन्ट्रैक्ट करबा द्वारा से बॉलस टा को आगु को ठेलुची, आउ पोस्टीरियर एंड रे आमर लॉन्गिट्यूडनल मसल टा कॉन्ट्रैक्ट करूची, आउ से जो वॉल अछि इंटेस्टाइन रो से बाहर को ठेलुची। बाहर को ठेलिवा फल आमर जो स्क्वीज हो जाइए बॉलसटा, से सेटा को तल पोर्शनटा रिसीव करि नउची। सो इट इज जस्ट लाइक अ पेरिस्टालसिस, बट ओवर हियर it is taking place in the small intestine and it is taking place after your segmentation movement has been done and your absorption of food has been completed. So it begins at the lower portion of your stomach and pushes the chyme forward along a soft stretch of the intestine before they die out. For it begins at the lower portion of the stomach. आमर stomach रो lower position रे से आरंभ होइछि, आउ एटा lower position रो आमर इलियम पर्यंत, इलियम रो एंड पर्यंत पहुँचीबा पाई ताकू 90 रु 120 मिनट्स लागि थाए। एतिकी समय लगी थाए ए जो मास मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स बा ए मूवमेंट टाकू गोटे जगह आरंभ होइछि, स्टमक रो एंड रे आरंभ होइछि, किंतु इलियम रो एंड पर्यंत पहुँचीबा पे ताकू 90 टू 120 मिनट लगी थाए। सो दिस टू आर द मेकानिकल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन which is helping in mixing the food, digestion of the food and also in absorption of the food. Now let us deal with your chemical digestion in small intestine. As I have been telling you, when we have started the digestion process, your chemical digestion, they involves your enzymes. The food that is coming from your stomach, it consists of your partially digested carbohydrate, partially digested protein and partially digested lipid and undigested nucleic acid. एबे पर्यंत आमे आउ गोटे जिनस आमे डील करने न्यूक्लिक एसिड। आमे जानिछे सेल्स भितरे न्यूक्लिक एसिड मस्ती अछंती। आमे जो खाऊचे से खाइबा आमे लिविंग प्रोडक्ट गुड़ा को खाऊचे, से प्लांट सोर्स रु हो किंबा एनिमल सोर्स रु हो। सो एमाने ए जिनस गुड़ा को दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल भितर हमरो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड छड़ा हमरो दिस न्यूक्लिक एसिड गुड़ा को भी अछंती। तो आमे एबे डाइजेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रे ए चारिटा जाको जिनस केमिति डाइजेस्ट होउची एबे आमे सेटा जानि नेबा। एंड the digestion of all these things, that is your lipid, protein, carbohydrate and your nucleic acid, it is completed inside the small intestine itself.
So let us see in detail how your digestion of carbohydrate is occurring inside your small intestine. So for digestion of carbohydrate, your enzymes are coming from your two sources. The first source is your pancreatic amylase and second is the Brush border enzymes. First let us deal with the pancreatic amylase. In this pancreatic amylase is the enzyme which is released from your pancreas. पैनक्रियास एटा को तैयारी करी थाए आ पैनक्रियाटिक डक्ट थ्रू रु आमर पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रिएट हुए पैनक्रियास रे से जूस माध्यम रे पैनक्रियाटिक डक्ट माध्यम रे से डिओडनम को आसी थाए. This pancreatic amylase, it starts breaking down the starch that has not yet been broken down. आमर स्टार्च रो डाइजेशन टा कोठी आरंभ होईची आमर माउथ रे आरंभ होईथिला किंतु सबुतक स्टार्च रो सबुतक स्टार्च डाइजेस्ट हेई पारी नाही आमर माउथ रे. काहे के हेई पार नाही, गुड़ाए समय हेई थाए जे आमको जेते समय चोबेवा पे खाद्यटा दरकार हेई थाए आमे चोबौ नाहु, 4-5 थर चोबई देलु ढोकी देलु. सो आमर खाद्य आमर माउथ रे खाद्यटा प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हेबा पे आमको से खाद्यटी को अराउंड 30 रु 40 थर चोबेवा पे पड़ी थाए किंतु आमे सेईटा को ध्यान दे न थाउ, बहुत जल्दी चोबे कि आमे ढोकी दे थाउ. ताहा फल रे कोन होउची आमर स्टार्च जो अछि सेडा डाइजेस्ट हेई पारी नाही आमर पार्टी भितरे. सो द इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड और द अनडाइजेस्टेड starch which is there in our mouth, when it enters the small intestine, it is acted upon by your enzyme which is your pancreatic amylase. Salivary amylase टा हम सलाइवा रे थिला, एठी pancreatic amylase टा एठी काम करूची. सो से कोन करूची, से स्टार्च अनडाइजेस्टेड स्टार्च टा को से डाइसैकेराइड्स रे कन्वर्ट कर दोची. एटा हमें आगुरु भी डील कर सचे. डाइसैकेराइड्स कोन माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज रे से कन्वर्ट करी दोची. किंतु आमर जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज अच्छी से आमर जो सेल्युलोज अच्छी प्लांट रो फाइबर आमे जोटा प्लांट फाइबर कहूचे से सेटा को डाइजेस्ट करी पारु नाही. योर पैनक्रियाटिक एमाइलेज इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन योर सेल्युलोज. इट कैन नॉट डाइजेस्ट ए सेल्युलोज. देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हाई वी आर टेकिंग प्लांट फूड. आमे प्लांट जिनस खाइबा कौन दरकार, आमे मेजर सेल्युल ऑफकोर्स तार प्लांट रे स्टार्च अच्छी आमे एनर्जी पाउचे तो सेल्युलोज टाको से जदि डाइजेस्ट कर पारु नाही तो सेल्युलोज रो इंपोर्टेंट टा कोन आम पई तार बहुत इंपोर्टेंट रही. जदिओ से आम बॉडी भितर डाइजेस्ट हो नाही किंतु सेल्युलोज टा जो अच्छी से आमर मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड योर डाइजेस्टिव ट्रैक, आम डाइजेस्टिव ट्रैक भितर जो फूड रो मूवमेंट होची सेथिरे हेल्प करे एंड वी कॉल इट एज योर roughage. This undigested cellulose which is there in our food particles inside our intestine is known as roughage and it helps in the movement of the food through the intestine. It is very much important. सेथि पय हमको कुआई थाए साग खाइबा पे, प्लांट जिंस खाइबा पे. कहीं कारण आमको फाइबर मिले से जो दो आमे फाइबर टी को डाइजेस्ट करि पारु ना हो किंतु तार मूवमेंट टा आम पई बहुत एसेंशियल, आम डाइजेस्टिव सिस्टम पई बहुत एसेंशियल. Now let us deal with the other enzymes which are there for your digestion. The other enzymes are your Brush border enzymes. If you remember, we have been dealing with this Brush border enzyme time and again. Your apical cells, your absorptive cells which are there in your mucosa, they are your epithelial cells, and the apical plasma membrane when it is thrown into folds it is known as microvilli. तमे जदि मने पकई पारिबा आमर जो एब्जॉर्प्टिव सेल अछंती बा एपिथेलियल सेल्स अछंती म्यूकोसा रे सेमानकर एपिकल पोर्शन आमे कोटा को कहिथिले जो मुहटा सेल रो फेस करिछि लुमन को आमे सेटा को एपिकल पोर्शन कहूचे. आउ से एपिकल पोर्शन रे आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा केमिति हेछि फोल्डेड हेकि अछि. सो एपिकल पोर्शन रे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा फोल्डेड हेकि अछि सेही रीजन टा को फोल्डेड रीजन को आमे कहूचे माइक्रोविले.
and the enzymes that are present in this microvilli, they are known as your brush border enzymes. ei jo microvilli joti achi sei jaku ame brush border कहूचे आउ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे ए जो माइक्रोविले रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे जो एंजाइम गुड़ाक अच्छे से जाको आमे ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहूचे. सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग ब्रश बॉर्डर एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ स्मॉल इंटेस्टाइन आर योर अल्फा डिस्ट्रिनेस, sucrase, lactase and your maltase. Again this alpha dystrinase, it acts on your resulting alpha dystrin. आमर जेतेबेले सलाइवरी एमाइलेज किंबा पैनक्रियाटिक एमाइलेज जेतेबेले स्टार्च को डाइजेस्ट करथिला से किछिटा अल्फा डिस्ट्रिन भी प्रोड्यूस करथिला. सो ए अल्फा डिस्ट्रिनेस कोन कहूची से अल्फा डिस्ट्रिन ऊपर एक्ट करिकी ताठू जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उडाक अछि गोटे गोटे करिकी काटी नउची. It is clipping off the glucose molecule of your alpha dystrinase one by, not alpha dystrinase, alpha dystrin one by one. And who is doing this? The enzyme alpha dystrinase is doing this. Okay, so glucose is your monosaccharide and no further digestion is required once we have got the monosaccharide. The other enzyme that is there is your sucrase. This sucrase breaks your sucrose molecule into a molecule of glucose and a molecule of fructose. Again this glucose and fructose, they are monosaccharides. Lactase, they digest your lactose into your glucose and galactose, which are again your monosaccharides, and your maltase splits maltose into your 2 unit or 2 molecule of your glucose, which are again monosaccharide. तो आमे देखिले आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे आमर एंटायर स्टार्च टा जो अच्छी द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो अच्छी स्टार्च सेटा पूरा डाइजेस्ट हो गला मोनोसैकेराइड को, जो जमीती कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज ए सब को से डाइजेस्ट हो गला. सो वी नीड नॉट नीड एनी फर्दर डाइजेशन. With monosaccharide our digestion of carbohydrate is completed. Now the carbohydrate is ready for being absorbed by the body and to pass into the bloodstream. Okay, so this is how your digestion of your starch is taking place inside the small intestine. Now let us deal with the digestion of your protein in small intestine. Again, for your digestion of protein, your enzymes are coming from your two sources, your pancreatic proteases and your brush border enzymes. So let us deal over here. The pancreatic juice contains your pancreatic proteases like your trypsin proteases माने कौन protein digesting enzymes. आमे collectively तांको proteases कहूचे. So it consists of your trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase and your elastase. Okay, these are the proteases which are present in pancreatic juice, but the digestion process of all these enzymes are very much specific. तमे पचारि पारिबो मैडम गोटे जदि प्रोटीएस अछि से तो प्रोटीन टा को डाइजेस्ट कर देला, हमको एते प्रोटीएसेस काहे की दरकार, आमको एते गुड़ाए प्रोटीएसेस दरकार कारण ए सबु प्रोटीएसेस गुड़ाकर डाइजेशन अलगा भारी स्पेसिफिक. ए प्रोटीएसेस गुड़ाक एणु तेणु कोठी भी पेप्टाइड बॉन्ड गुड़ाक जाइके काटी पारिबे नाही. They will be cutting the peptide bond in between two specific neighbors. They will be cutting the peptide bond in between two specific neighbor inside the protein. से माने दीटा एमिनो एसिड स्पेसिफिक नेबर माने नेबरिंग एमिनो एसिड मु कहूची. आमर पेप्टाइड आमर प्रोटीन टा चेन ऑफ एमिनो एसिड. सो ए माने ए जो चेन ऑफ एमिनो एसिड अछि से एमिनो एसिड उडा भितरु दीटा स्पेसिफिक एमिनो एसिड रही पेप्टाइड बॉन्ड टा को काटिबे. Suppose trypsin, गोटे example आमे नेबा. This trypsin it cuts at the C terminal side of amino acid residue of your lysine and arginine. फर्स्ट आमे देखि नेबा ट्रिप्सिन रो काटिबा केमिति काटुची सेटा को जानिबा आगु आमे आगो देखि नेबा C terminal side कोन, N terminal side कोन. The starting part of a protein is known as the N terminal side. एठी देखो NH2 group अछि. First amino acid आमर प्रोटीन रो जो फर्स्ट एमिनो एसिड अच्छी सेटा होची स्टार्ट ऑफ अ प्रोटीन. तो आमे केमिति जानिबा एटा तो गोटे एमिनो एसिड रो चेन टा आमे केमिति जानिबा कोटा स्टार्ट आमे एठू चिन्हि नेबा जो एंड रे आमर ए NH2 ग्रुप टा अछि सेटा होची आमर स्टार्ट आमर स्टार्टिंग एमिनो एसिड.
and the end which is containing your carboxyl group or your COOH, that is the last amino acid. Okay. So, we will be calling the amino acid which are present in this end are your N terminal amino acid, and we will be calling the amino acid which are present in your carboxyl terminal end as a carboxyl terminal end of your protein. Okay. So, this trypsin what is does? This trypsin digest your peptide bond between lysine and arginine. से आमर एमिनो एसिड अच्छा लाइसिन और आर्जिनिन, ये जो लाइसिन और आर्जिनिन को एरिया रे रहिबा दरकार, कौन सबू एरिया रो जो लाइसिन और आर्जिनिन अच्छी समस्त को ट्रिप्सिन काटिबो नाही, खाली कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड रे जो लाइसिन और आर्जिनिन अच्छी जो लाइसिन और आर्जिनिन माने सपोज एटा होची लाइसिन ठीक ता साइड रे आर्जिनिन अच्छी, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड टा को ट्रिप्सिन काटिबो। मु गोटे एग्जांपल देली किंतु अन्य एंजाइम तमर काइमोट्रिप्सिन हो, कार्बोक्सीपेप्सिडेज हो किंबा इलास्टेज हो, all of this enzyme they are highly specific in their interaction. That is why we need a large number of these proteases for proper digestion of the protein. Then your carboxypeptidase, what it does, how does it act? It clips off the amino acid at the carboxyl end of the peptide. आमर कार्बोक्सीपेप्टिडेस नाटा ही है जे नारू ही आम जान दे पारिबा से कार्बोक्सिल एंड रु एमिनो एसिड टा को काटिबा आरंभ करिवो। कार्बोक्सिल एंड कोटा जोठी की कार्बोक्सिल ग्रुप अछि से एंड टा को आमे कार्बोक्सिल एंड कहबा। कार्बोक्सिल एंड रो ए जो लास्ट दीटा एमिनो एसिड अछि ता मझी रे जो फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड टा जो रहिला से आगो सेटा को काटिबो, के काटिबो कार्बोक्सीपेप्टिडेस एंजाइम, एंड इट विल free this last amino acid. Second, again it will cut the two peptide bond between the last two amino acid, and one by one it will go on chipping off or clipping off one amino acid from your carboxyl terminal end. Now we will be dealing with your brush border enzymes which are present in your this microvilli, membranes of the microvilli for digestion of your protein. So, for protein digestion your two peptidases, your aminopeptidase and dipeptidase are present. This aminopeptidase they cleaves off the amino acid at the amino end of the peptide. आमर amino end टा एठी रहिला, amino end रु गोटे गोटे amino acid को से काटी काटी बा गोटे गोटे peptide bond को से काटी काटी जीवो, सेथि पई ता नाटा दिया है aminopeptidase. And what does your dipeptidase do? Dipeptidase will be cutting off the peptide bond in your dipeptide. Dipeptide माने कौन, जेते बेले दीटा एमिनो एसिड गोटे पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ा है कि अच्छंती सेटा को आमे डाइपेप्टाइड कहिबा। जेते बेले ए डाइपेप्टाइड रो पेप्टाइड बॉन्ड टाकू काटे, जो एंजाइम ए डाइपेप्टाइड रो पेप्टाइड बॉन्ड टाकू काटिबो सेटा को आमे डाइपेप्टिडेज कहिबा। Next we will come to digestion of your lipid in your small intestine. Till now we have dealt that your digestion of lipid has not taken place inside mouth. It has taken place to certain extent inside your stomach. About 20 to 30% of the lipid digestion is taking place inside the stomach. Then the maximum amount of lipid digestion will be carried out by your small intestine. So, mostly the food that we are eating, it contains the lipid in the form of triglyceride. Let us have a look at the structure of your triglyceride again. It is having a glycerol backbone. मु तम्मानु को आगुरु भी एटा कहिछि गोटे glycerol backbone अछि, एटा दीटा कार्बन एटम अच्छी, एटा होची ग्लिसरॉल बैकबोन, आउ ए प्रति कार्बन एटम सहित गोटे गोटे आमर फैटी एसिड चेन अटैच होइकी अछि। जेहेतु तीनटा कार्बन एटम अच्छी आउ से तीनटा कार्बन एटम सहित तीनटा माने गोटे गोटे फैटी एसिड चेन अटैच अच्छी, सेथिबाय आमे कहूचे एटा को ट्राइग्लिसराइड. So enzyme that split your triglyceride are called your lipase. So what does this lipase do? This lipase cuts off or it cleaves the fatty acid chain from this glycerol backbone. एटा होची glycerol backbone. एठू से clip off काटी निए ए जो long fatty acid chain गुड़ा को, ताले आमे कौन पाऊ, आमे glycerol पाई थाओ और fatty acid chain गुड़ा को आमे पाई थाओ. So let us see how this digestion is taking place.
But before going into your this digestion, this lipase which is present inside your the small intestine is your pancreatic lipase. आमे से lipase टा pancreas रू पाई थाउ, सेथि पाई से lipase टा को आमे pancreatic lipase कहि थाउ. But for your digestion, for your lipid digestion to occur, it has to undergo a process which is known as emulsification. Lipid digestion amara hei pariba nahi je parjanta amar lipid ta emulsify hei nahi. What is emulsification? Emulsification is a conversion of big globule of your fat into your small globule of fat. आमर ये जो लिपिड ग्लोब्यूल गुड़ाक जितेबाला एंटर करे डिओडनम को से माने बड़ बड़ ग्लोब्यूल होकी थांती आउ ये जो बड़ बड़ ग्लोब्यूल गुड़ाक डाइजेस्ट करबा भारी डिफिकल्ट सेथि पई तांकर इमल्सिफिकेशन टा निहाती दरकार इमल्सिफिकेशन हला बेले कोन होची ए बड़ ग्लोब्यूल टा चेंज हो जाउची छोट छोट ग्लोब्यूल को आउ ये छोट छोट ग्लोब्यूल जितेबाला हे जाउची आमर लाइपेज जो अछि से आराम से लिपिड टा को डाइजेस्ट करि परिबो सो लेट अस सी हाउ दिस कन्वर्शन is taking place. This emulsification is carried out by your bile salts which are present in your bile. So this bile salts they are amphiphatic in nature. Amphiphatic एई टर्म टा आमे भलो से जानि नेबा दरकार. Amphiphatic माने कोन एठी आमे देखिबा एठी गोटे bile salt मु देखैछि. So this bile salt is amphiphatic. What is the meaning? It is consisting of your hydrophilic region. Hydrophilic region टा को एठी green dots रे देखाइछि. Hydrophilic माने कोन water loving. से आयोनिक रीजन सहित आराम से इंटरैक्ट कर परिबो. इट इज आल्सो हैविंग योर हाइड्रोफोबिक रीजन. व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? वाटर रिपेलिंग माने से वाटर सहित रहिबा पे भलो पाएनी किंतु लिपिड सहित इंटरैक्ट करिबा पे से भलो पाए. Since it is amphiphatic, since the bile salt is amphiphatic, it can easily interact with a large lipid globule and also can stay inside the ionic environment or hydrophilic environment of a small intestine. So what this bile salts do the bile salts they cover a small or they surround a small portion of this fat globule and they separate it from the large chunk of the fat globule. Bile salt कौन करिबो गुडाए bile salt आसिकी घेरे हेकी गोटे छोटो fat globule टी अलगा कर देबे ए बड़ fat globule. So एमिति हेले कौन होबो जेते ए जो बड़ fat globule टा छोटो छोटो fat globule रे convert हे जिवो. This conversion of this big chunk of your fat globule into your small chunk of a small fat globules helps in it increases the surface area of digestion by the process of which your lipase can easily digest the lipid. So this is all about your digestion of lipid. Now let us deal with digestion of your nucleic acid. Till now we have not dealt with the digestion of nucleic acid anywhere inside your mouth, stomach, we have not dealt with it. Your digestion of this nucleic acid is starts inside the small intestine and it also ends inside the small intestine. आमर सेल रो न्यूक्लियस भितर न्यूक्लिक एसिड गुड़ाक अच्छी आमर डीएनए टा न्यूक्लियस भितर अच्छी आरएनए टा बहुत न्यूक्लियस भितर आउ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रे भी आमे पाउचे. सो ए गुड़ाकर डाइजेशन पाई भी स्पेसिफिक एंजाइम्स दरकार. व्हाट आर दो स्पेसिफिक एंजाइम? दो स्पेसिफिक एंजाइम आर योर दिस एंजाइम्स आर कमिंग फ्रॉम योर टू सोर्सेस, योर पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड योर ब्रश बॉर्डर एंजाइम. Your pancreatic enzyme, there are two type of pancreatic enzyme which are carrying out the digestion of your nucleic acid. They are your ribonuclease and your deoxyribonuclease. This ribonuclease, as the name indicate, it digests the RNA into nucleotides. राइबोन्यूक्लियस टा आरएनए आमर सेल्स भीतर आम सेल्स तो नहीं आमर जो खाद्य जो खाऊचे से सेल्स भीतर जहाँ आरएनए अच्छी से आरएनए टी को डाइजेस्ट कर दबो. केमिति डाइजेस्ट करिवो ताकू न्यूक्लियोटाइड रे कन्वर्ट करि दबो बिकॉज दिस आरएनए इज योर पॉलीमर ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड.
सो से इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड रे ताकू डाइजेस्ट करी देला. दिस deoxyribonuclease it will digest the DNA in the DNA into your nucleotide. deoxyribonuclease टा हमरो DNA टा को न्यूक्लियोटाइड रे कन्वर्ट कर दिए. सो हमरो deoxyribonuclease और राइबोन्यूक्लियस द्वारा हमें न्यूक्लियोटाइड उड़ा को पाइले. These nucleotides they will be further digested by your brush border enzyme, your nucleosidases and your phosphatase. This nucleotide that are formed from your digestion of your ribonuclease and your deoxyribonuclease, they are acted upon by these two enzymes and they are converted into your pentose, phosphate and your nitrogenous base. आमर जो न्यूक्लियोटाइड जो अच्छी सेटा तीनटा बेसिक कंपोनेंट रे गढ़ा कौन आमर पेंटोज सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस. तो ये तीनटा जाक जो बेसिक कंपोनेंट से बेसिक कंपोनेंट गुड़ा को सेपरेट करदेला आउ एबे आमर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड रो डाइजेशन टा पूरा कंप्लीट हो गला. काहे कि कारण ए गुड़ा को इजीली एब्जॉर्ब हो जिबा आम एब्जॉर्प्टिव सेल द्वारा आउ एब्जॉर्प्टिव सेल कौन करिवो तांको ब्लड स्ट्रीम रे छाड़ी दबो. Now let us deal with digestion. So with this we have completed your digestion inside the small intestine. Your digestion is completed inside the small intestine, but let us see what is happening inside your large intestine. So again to recapitulate, your large intestine consists of your cecum, then colon, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and your anus. So the mechanical digestion that is taking place inside your large intestine is because of certain specific movement which is taking place in large intestine. What are those specific movement? Your haustral churning, your peristalsis and your mass peristalsis. हॉस्ट्रल चर्निंग आमे जोटा कहूचे सेटा बहुत इम्पोर्टेंट जिनस लार्ज इंटेस्टाइन पाई आउ ए जो मूवमेंटा आमे खाली लार्ज इंटेस्टाइन रे ही देखिबा आउ कोठी भी देखिबानी. एगेन हॉस्ट्रम गुड़ाक कौन आमर लार्ज इंटेस्टाइन इज आमर लार्ज इंटेस्टाइन टा यूनिफॉर्म नाही, से पाउच लाइक अच्छी, तार सरफेस टा पाउच लाइक अच्छी. ईच पाउच इज नोन एज योर हॉस्ट्रम. सो व्हाट इज दिस हॉस्ट्रल चर्निंग? Haustral churning, when your food is entering your large intestine and it is entering from cecum into the first haustra. फूड जिते बड़े स्मॉल इंटेस्टाइन रो एंटर करूची लार्ज इंटेस्टाइन को आमर सीकम एंटर कला, सीकम को एंटर करके एबे फर्स्ट हॉस्ट्रम टा को एंटर करूची. से खाद्यटी को ता भीतर को नहीं जीव किंतु गोटे पोजीशन आसीबो जेते बड़े से आउ अधिका खाद्य ता भीतर रखी परिबो नै, तार भी गोटे कैपेसिटी अछि. जेते बड़े से कैपेसिटी टा को रीच करनबो से कोन करिवो, से हॉस्ट्रम टा चिप्पी हेइ जिवो. The haustrum, the first haustrum will be squeezing itself and it will propel the food into the next haustrum. जेते बेले फर्स्ट हाउस्ट्रम रो कैपेसिटी टा फुल हो गला, से स्क्वीज करिकी ता भीतर जो खाद्य अच्छी से नेक्स्ट हाउस्ट्रम को ट्रांसफर कर दबो आउ ए प्रोसेस टा कुआ हुए हॉस्ट्रल चर्निंग. आमर आउ गोटे भी मूवमेंट अच्छी पेरिस्टालसिस. इट इज सेम एज द पेरिस्टालसिस वी हैव बीन डिस्कसिंग बट इट्स रेट इज वेरी स्लो, अबाउट 3 to 12 contraction per minute. And the last is a mass peristalsis. This mass peristalsis, it is a strong wave that begins about the middle of your transverse colon, and what it does, it forces the food into your rectum. So these are the mechanical digestion that are taking place inside the large intestine. For your chemical digestion inside the large intestine, no enzymes are produced. आमर लार्ज इंटेस्टाइन भीतर आमर ऑलरेडी डाइजेशन कंप्लीट हो जाइए इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आमर लार्ज इंटेस्टाइन रे किछि भी एंजाइम प्रोड्यूस हो नाही. तो कौन आमर लार्ज इंटेस्टाइन रे किछि डाइजेशन हो नाही? डाइजेशन होउची. केमिति होउची? वी इनसाइड अ लार्ज इंटेस्टाइन वी आर हैविंग सम फ्रेंडली बैक्टीरिया. Our intestine is carrying some, this large intestine is carrying some friendly bacteria which is carrying out the fermentation of your undigested carbohydrate. आमर जहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो पार ना, आमर लार्ज इंटेस्टाइन रे ए बैक्टीरिया गुड़ाक कौन करती से कार्बोहाइड्रेटा फर्दर फर्मेंटेशन आरंभ करथांती. बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस वी आर गेटिंग योर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. And this
hydrogen, carbon dioxide and methane, they contribute to the flatus or the gas inside the colon. When there is excessive amount of this gas, we call it as flatulences. आमर gas जते बेले अधिका हो जाई थाए आमर large intestine रे आसे आमे ताको कहि थाउ flatulences. Your bacteria also converts your remaining protein into amino acid, and this amino acid is also broken down into your simpler substances like your indole, scatol, hydrogen sulfide and fatty acid. Some amount of this indole and scatol are eliminated along with the fecal matter. आमर फिकल मैटरटा जिते बड़े बाहर को आसूची किछि अमाउंट रो इंडोल और स्कैटोल भी ता सहित बाहर को आसी जाउची एंड द स्पेसिफिक ऑर्डर आमर जो गोटे स्मेल जो हुए जिते बड़े फिकल मैटरटा बाहर को आसे से स्मेलटा इंडोल और स्कैटोल जोगु. Then your bacteria is also involved in decomposition of bilirubin. Bilirubin कौन थिला आमर पिगमेंट थिला आमर बाइल पिगमेंट. सो ए बाइल पिगमेंट कन्वर्ट हो जाए सिंपलियर पिगमेंट स्टर्कोबिलिन को. किए कन्वर्ट करे बैक्टीरिया इज कन्वर्टिंग योर बिलिरुबिन इनटू योर स्टर्कोबिलिन एंड दिस स्टर्कोबिलिन गिव्स द फीकल मैटर द कैरेक्टरिस्टिक येलोइश ब्राउन coloration. आमर जो fecal matter or yellowish brown जो coloration, it is because of this stercobilin. Your bacteria produces several vitamins needed for your normal metabolism. Among them are your vitamin B, vitamin K and so on. माने बैक्टीरिया गुड़ाक जो आम बॉडी भितर अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन अच्छा से माने आमको केते हेल्प करती आमे एठू जानी नहीं पारिबा. सो विथ दिस आवर डाइजेशन process is completed. This is the summary of digestion, entire how digestion of carbohydrate is occurring from starting from your oral cavity to to your large intestine, protein digestion, nucleic acid digestion and fat digestion, how they are occurring. We have completed the entire stuff. Next let us go to the second last portion, which is absorption of food. Digestion of food is completed. Now the food needs to be absorbed and it needs to be circulated throughout the body. So whichever cell requires the digested food material, they can take up from the blood. Let us define digestion. Let us define your absorption now. Absorption is a process by which the product of digestion, water, mineral and vitamin are transported to the blood or lymph through the mucosa of alimentary canal to be supplied to the rest of the body. Absorption होची से प्रोसेस टा जहाँ द्वारा कि आमर ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट रहिला डाइजेस्टेड फूड रहिला सेटा एब्जॉर्ब होची ता सहित वाटर भी एब्जॉर्ब होची आ मिनरल आ विटामिन गुडाक भी एब्जॉर्ब होची. एब्जॉर्ब होला परे कोन होची से आमर ब्लड स्ट्रीम भीतर को चली जाउची आ डिस्ट्रीब्यूट करची एंटायर बॉडी भीतर डिस्ट्रीब्यूट करी कि जो सेल रे खाद्य दरकार से माननकु से खाद्यटी को जोगेई दोची. So let us deal with your absorption in each and every part of your digestive system. Inside the mouth, no absorption is taking place except for your certain drug. आमको डॉक्टर गोटे गोटे मेडिसिन चुचमे की खाइबा पे देई थांदी काहेकि कारण से मेडिसिन उडाक पार्टी रे ही एब्जॉर्ब होई थाए पेट भीतर को गले से मानकर एब्जॉर्प्शन हबनी. सो जेते बेले आमको डॉक्टर कहि था एटा को चुचमे की खाइबा पे आमे सेटा को चुचमे की आम पार्टी भीतर ही खाइ नेबा दरकार ताकि तारो एब्जॉर्प्शन हे पारिबो. Your absorption in stomach, very small amount of absorption is taking place in stomach. The mucosa cell of your stomach, it absorbs certain amount of your water, iron, your short chain fatty acid and certain drug, especially your aspirin and alcohol. बहुत कम एब्जॉर्प्शन हुए वाटर किछि अमाउंट एब्जॉर्ब होता है अल्कोहल टा एब्जॉर्ब हुए आउ ड्रग किछिटा एब्जॉर्ब होता है. एग्जांपल गोटे ड्रग रहउछि एस्पिरिन. Your 90% of your digestion your absorption is occurring inside your small intestine. Now how is this absorption occurring? Let us see in detail. First, your absorption of carbohydrate inside your small intestine.
this all the carbohydrate have been converted into a monosaccharide. This monosaccharide are absorbed by your by the absorptive cell of your small intestine by two processes. They are your facilitated diffusion and your active transport. आमर स्मॉल इंटेस्टाइन मोनोसैकेराइड गुड़ा को एब्जॉर्ब करने कैपेसिटी टा बहुत अधिका. इट कैन एब्जॉर्ब अबाउट 120 ग्राम्स ऑफ योर मोनोसैकेराइड पर आवर. 120 ग्राम गोटे घंटे से एब्जॉर्ब करि पारे. आउ जहाँ भी डाइजेस्ट हो जाइए आम बॉडी भितर जहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाइए से सबू किछि को एब्जॉर्ब करि निए एक्सेप्ट फॉर योर अनडाइजेस्टेड सेल्युलोज. अनडाइजेस्टेड सेल्युलोज को छाड़ी कि से बाकी सबू किछि एब्जॉर्ब करि नहीं थाए. आउ एब्जॉर्प्शन टा क्रो प्रोसेस रे हुए. एब्जॉर्प्शन टा हुए बाय योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो लेट अस सी. So this is your absorptive cell. मु कही आमर absorptive cell रो एपिकल पोर्शन. एपिकल पोर्शन माने कोडा एटा होची लुमेन. आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रो लुमेन. लुमेन को फेस करिकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि सेटा थ्रोन हो जाइए इंटो फोल्ड. से फोल्डेड हो जाइए. आईटा को आम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आम कहू. सो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम थ्रू रू आमर मोनोसैकेराइड गुड़ाक एब्जॉर्ब होचंती. दे आर बीन एब्जॉर्ब विथ द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने कौन से माने हेल्प नौचंती आउ किछि प्रोटीन रो फॉर दे ट्रांसपोर्टेशन. तांको ट्रांसपोर्टेशन पाई से माने आउ किछि प्रोटीन रो हेल्प नौचंती. सेति पाई सेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कुआ हुए. किंतु फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रे आमर एनर्जी दरकार हुए नहीं. Then the second type of your transport that is taking place is your active transport. Your glucose and galactose, they are transported by your secondary active transport with sodium. What does I mean when I say your secondary active transport with sodium? It means that your sodium is transported via active ट्रांसपोर्ट. सोडियम टा एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जाउची. एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन आमर से एनर्जी दरकार होची. आमको एटीपी दरकार ए ट्रांसपोर्ट पाई. सो जेते बेले सोडियम टा एंटर कोची सोडियम सहित ए ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी एंटर करी जाउछंती. सेति पाई आमे कहूचे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. And your fructose it is entering your this absorptive cell with the help of facilitated diffusion. After this have entered the absorptive cell, now they are moving out of the cell by your facilitated diffusion through the basolateral surface. एटा होची basolateral माने जोड़ा बेस रे अछि. मु तम्मानु को आगुरु भी कहि सारची. एटा होची एपिकल सरफेस, एटा होची बेसल सरफेस और एटा होची लैटरल सरफेस. सो ए basolateral surface थ्रू रु फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा ए सबु तक मोनोसैकेराइड बाहरी जाउछंती एब्जॉर्प्टिव सेल रु. आ से माने एंटर करछंती योर कैपिलरीज, योर ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज को एंटर कर साला पारे they have been circulated throughout the body with the help of the blood. Now your absorption of protein is taking place with the help of your active transport. Energy दरकार होची प्रोटीन रो एब्जॉर्प्शन पाई. प्रोटीन केमिति एब्जॉर्ब होची प्रोटीन टा ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाइए एमिनो एसिड को. सो दिस एमिनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब बाय योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट they come out of the absorptive cell at the basal side with the help of your diffusion. After diffusing out they enter the blood capillaries of the villus. आमे villus कौन आगुरु जानी नहीं छे. ए villus भितरे जो blood capillary अछि से ता भितरु को एंटर करी जाउछंती. आउ ए एमिनो एसिड उडा को आउ कार्बोहाइड्रेट उडा को से माने लिवर को केमिति जानती. से माने लिवर को जानती बाय योर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. हेपाटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा से माने लिवर पाखु को जानती. Your most important thing is your of course absorption of your carbohydrate is important, protein is important, but absorption of your lipid is slightly different. टिके अलग आम एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन आउ लिपिड एबे सॉरी प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट जेमिति देखिले लिपिड रो एब्जॉर्प्शन टा टिके अलग. लिपिड इज एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन.
simple diffusion द्वारा सेटा absorb होउची. Your short chain of fatty acids they pass into the absorptive cell via your simple diffusion and enter the blood capillary of your villus. But your last chain of your fatty acid or your long chain of your fatty acid and monoglycerides, how they have been absorbed. First what is happening is this bile salts they form a spear. एठी देख एटा होची लुमेन आमर बाइल सॉल्ट्स जो अच्छी बाइल सॉल्ट्स गुड़ाक घेरे दियंती लॉन्ग चेन फैटी एसिड आउ मोनोग्लिसराइड एटा होची मोनोग्लिसराइड एटा होची लॉन्ग चेन फैटी एसिड एमानन को घेरे दियंती बाइल सॉल्ट गुड़ाक. व्हाई? टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम योर लुमेन to your apical surface of your absorptive cell. से माने lumen रू apical surface पर्यंत ए digested lipid उड़ा को छाड़ी दियंती. When this lipid come to your this absorptive surface of your absorptive cells, then what is happening is bile salt they disintegrate and they free your long chain of your fatty acid and your monoglyceride. This long chain of your fatty acid and monoglyceride they are absorbed by simple diffusion by your absorptive cell. आमर बाइल सॉल्ट्स जो अच्छी आमर ऑलरेडी लिपिड डाइजेस्ट हो जाइए कहा केमिति डाइजेस्ट होइछि लिपिडटा डाइजेस्ट हो जाइए इनटू योर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड शॉर्ट चेन भी होता है पारे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड आमको किछिटा मिलता है आउ मोनोग्लिसराइड मिलता है. ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड आउ ये जो ग्लिसरॉल अच्छी ताकू कौन करे आमर लिपिड आमर बाइल सॉल्ट्स गुड़ाक ताकू घेरी निए कहीं कारण ताकू हेल्प करिबो ट्रांसपोर्टेशन. केमिति हेल्प करछि ट्रांसपोर्टेशन रे से ए लुमेन रो जोठी भी थाउ ना कहीं ए फैटी एसिड गुडा को से नहीं जाउछि हमर एब्जॉर्प्टिव सेल पाखु को. एब्जॉर्प्टिव सेल पाखरे नहीं कि ताकू छाड़ी दउछि आ एब्जॉर्प्टिव सेल गुडा को सिंपल डिफ्यूजन थ्रू रू से भितर को नहीं जानती. Then what is happening inside your absorptive cell? Again another process is taking place. Inside the absorptive cell, your this monoglyceride and your long chain of fatty acid, they are reuniting again to form your triglyceride. आमर ट्राइग्लिसराइड रो डाइजेशन नहीं किंतु एब्जॉर्प्टिव सेल भितर आउ थरे ट्राइग्लिसराइड टा फॉर्म हो गला. सो ऑल मैक्स दिस ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड ऑल ऑफ दिस दे आर सराउंडेड बाय योर प्रोटीन. एठी देखो ए जो ट्राइग्लिसराइड या सहित कोलेस्ट्रॉल आउ प्रोटीन गुड़ाक सॉरी ए लिपिड गुड़ाक आमर प्रोटीन सराउंड करे. कोठी प्रोटीन टा सराउंड करछि इनसाइड एब्जॉर्प्टिव सेल. ये जो प्रोटीन सराउंड करिछि ए लिपिड गुड़ा को से यूनिट टा को आमे कहबा काइलोमाइक्रोन. This is known as your chylomicron. Again, once inside the absorptive cell, the long chain of fatty acid and monoglyceride they recombine to form your triglyceride, which aggregates into your globules along with your phospholipid and cholesterol and become coated with your protein. प्रोटीन गुड़ाक ताकू कोट करी नियंती. ए जो कोटेड प्रोटीन रो जो गोटे स्पीयर टे हमको मिलला आमे सेटा को कहबा काइलोमाइक्रोन. यार ए स्पीयर रो डायमीटर होची अबाउट 80 नैनोमीटर. This huge spear cannot enter your blood capillaries, but this huge spear it will be entering your lacteal. लैक्टियल माने लिम्फेटिक कैपिलरी. से ब्लड कैपिलरी आमर बहुत सरू आउ काइलोमाइक्रोन गुड़ा ब्लड एबे पर्यंत प्रोटीन ब्लड एंटर करछि डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एंटर करछि ब्लड स्ट्रीम भितर को. बट दिस लिपिड और योर काइलोमाइक्रोन दे विल बी एंटरिंग द लैक्टियल्स. After entering the lacteals, what is happening is this chylomicron are transported by way of your lymphatic vessel to the thoracic duct. This is a thoracic duct. So this thoracic duct then transfers this chylomicron at the level of your left subclavian vein. एठी आमे जो ब्लू कलर रो जो देखुचे सेटा होची लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. सो ए thoracic duct जो रहिला से लेफ्ट सबक्लेवियन वेन टाको ट्रांसफर कर दला. At the level of the left subclavian vein, this lipid is entering the blood vessel. So with this our absorption of lipid is also completed. Our last portion is your nutritional and digestive disorders. Let us deal with what are these nutritional and digestive disorders are.
First, we will be dealing with the nutritional disorders. We are having your undernourishment. आमर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर माने कौन आमर खाद्य रे कौन कौन लैक हो माने लैकिंग होची आमे जो खाइबा खाउचे से खाइबा रे आमर किछिटा न्यूट्रिएंट लैक होची सेहिति पई ए डिसऑर्डर उडा को आमे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहि थाउ. This undernourishment arises due to the lack of sufficient calories of food. A healthy person requires on an average about 2500 calories per day. गोटे दिन रे गोटे हेल्दी पर्सन पाई 2500 कैलोरी दरकार. When the intake of food is less than the amount of calorie needed, then we suffer from your undernourishment. What are the effect of undernourishment? It results in less energy in doing work. आमे काम कला बेले आमे हालिया ही जाओ, आमर एनर्जी न थाए. Lack of immunity power. आमको इजिली थंडा हो ज्वर हो आमको बहुत जोरे सेटा इफेक्ट करे कहीं कारण आमर भीतर इम्यून सिस्टमटा आमर आउ स्ट्रॉन्ग नाही. देन स्लो बॉडी ग्रोथ इन केस ऑफ चिल्ड्रेन. छुआ मानक भितर जदि अंडरनरिशमेंट रहिला तांकर ग्रोथ प्रॉपर्ली हेई पारे नाही. अपीयरेंस ऑफ एब्नॉर्मलिटी इन बॉडी. बॉडी भितर एब्नॉर्मलिटी भी देखा जाए बेले बेले छोट हाथ गोड़ डेभलप होता है किंतु किंबा बेले बेले आमर मेंटल रिटार्डेशन होता है छुआ बेले जदि अंडरनरिशमेंट होइथिबो तो यही जिनस गुड़ाक भी आम बॉडी भितर देखा जाए था. इलनेस सच एज एनीमिया गॉइटर थायराइड एसेट्रा. गुड़ा इलनेस एनीमिया हो कि गॉइटर हो थायराइड हो ये सब गुड़ाक आमर नरिशमेंट जिते बड़े आम प्रॉपर फुड जिते बड़े आम पाउने सेते बेले आमको यही जिनस गुड़ाक देखा जाए था. आमे कहबा जे मैडम आमे भात बहुत अधिका क्वांटिटी रे नौचे भात अधिका क्वांटिटी रे आमको कार्बोहाइड्रेट छड़ा से आउ किछि भी प्रोवाइड करनी. आमर भातर क्वांटिटी कम रहिबा दरकार खाइबा बेले किंतु पनीपरिबा मीट रो क्वांटिटी एग रो क्वांटिटी ए सबु जाक आम खाइबारे इंक्लूड हेबा दरकार. कारण भात जदि आमे खाली खाऊचे आमे मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट खाऊचे आम भितर को प्रोटीन विटामिन एते अमाउंट रे आम भितर को जाई पारे नाही. सो वी विल बी अंडरनरिश्ड. आमर खाइबार गोटे प्रॉपर पोर्शन रहिबा दरकार. Now let us deal with your malnourishment. This arises due to the lack of essential nutrients such as protein, vitamin in the food. आमर खाइबारे जेते बेले एसेंशियल न्यूट्रिएंट आमर प्रोटीन हो कि विटामिन हो कमी जाई थाए एटा कोठी हुए एटा आमे देखो प्राय एशियन कंट्रीज रे अफ्रीकन कंट्रीज रे जोठी कि माने तांकर पुअर कंडीशन जोगु स्टेपल फूडटा हे जाउची राइस. Rice is a staple food in Northeast Asian and your African continent, and because of this rice we are consuming only carbohydrate. आमे खाली carbohydrate खाऊचे किंतु प्रोटीन और विटामिन उड़ा को आम भितर को जाऊनी तो सेठी आमे malnourishment रू आमे सफर हो थाउ. So let us see few other diseases because of malnourishment. Your anemia. एनीमिया इट इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन डाइट. आम डाइट भितर जदि आयरन कमिला आम एनीमिया रे सफर करिबा. गॉइटर हाइपोथायरॉइडिज्म आयोडीन जदि कमी जाए से आजिकल लुण रे मध्य आयोडीन आसे जोटा कि आमर आयोडीन लेवलटा आम बॉडी भितर मेंटेन करके रखी थाए. देन नाइट ब्लाइंडनेस, dry skin, your kidney stone, all these are caused by lack of your vitamin A. Disturbance of your nervous system and muscular system, vitamin B1, weak bone, reduced immunity, vitamin C, rickets, vitamin D and weak muscle by your vitamin E. किछिटा एग्जांपल एटा देई देइछि आ को न्यूट्रिएंट्स उडा को लैक होछि जहा पे एई जिंस एई डिजीजेस उडा को होछि सेटा भी मेंशन करि दिया जाइछि. The third one is your protein energy malnutrition. This protein energy malnutrition, also known as PEM, it leads to various degree of your growth retardation. This is due to lack of your adequate quantity of your protein or carbohydrate or both. जेते बेले छुआ मानक भितरे एटा बेसिकली छुआ मानक को बहुत इफेक्ट करता है. छुआ मानक भितरे प्रोटीन हो किंबा कार्बोहाइड्रेट हो किंबा दीटा जाक जेते बेले लैक करछि आमे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन द्वारा से छुआटा affected होता है. And there are two type of your protein energy malnutrition, your Kwashiorkor and your marasmus.
So your washoker is a type of severe malnutrition that is common in children due to lack of protein. Washoker रा आमे protein deficiency थाए खाइबारे. Causes lack of protein in diet which affect the balance and distribution of fluid in the body and often leads to a swollen belly. एठी गोटे छुआ अछि आमे जदि एई छुआटी को देखिबा तार पंजरा हाड़ देखा जाउछे जो रिप केस गुड़ाक तार देखा जाउछी बहुत सरुआ छुआ किंतु तार पेटटी बहुत फुली जाइछि काहेकि तार फ्लूइड कंटेंट जो अछि आम बॉडी रे से प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हेई पारुनी. सो यही सिम्पटम्स गुड़ाक आम जिते छुआर देखा आम निश्चित जानी ना दरकार जे से छुआटा वॉशियोकर सफर कर सांगे सांगे तार ट्रीटमेंट आरंभ करना दरकार. लेट अस सी द सिम्पटम्स. लॉस ऑफ एपिटाइट एंड स्टंटेड ग्रोथ. खाइबा को भल लगे हाइट टा कम रहे. चेंज इन कलर ऑफ हेयर. आमे रास्ता रे भी गला बेले गुड़ाई छुआ मानू को देखा ये जो बस्ती रे जो छुआ माने साइड रे जो रहती आमे जदि देखा से जो चुटीर कलर टिके येलोइश किंबा ऑरेंज होता है जोटा कि आमे ओडिया रे नुखुरा कही था. सो सेई कलरेशन टा इंडिकेट करछि जे सेई छुआटी माल नरिश से छुआर किछिटा डेफिशिएंसी रोचे फूड भितर. डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस. डिहाइड्रेशन माने कौन बॉडी रे जल आमर वाटर कंटेंट जोटा सेटा कमी जाए. देन पिटिंग एडिमा और स्वॉलोइंग यूजुअली ऑन द लेग एंड फीट. पिटिंग एडिमा माने कौन फ्लूइड एक्युमुलेशन जोगु फुली जाई थाए. लेग और फिट आमे देखा ये छुआटीर पादटी भारी सॉरी गोड़टी भारी सरुआ किंतु पाद आड़ को देखा से पूरा फुली जाइए. पिटिंग एडिमा कौन आमे जदि ता पादटी को एमती दबेबा से दबेबा जगार गोटे गात हो. सो सेटा को आमे कहबा पिटिंग एडिमा. देन लैक ऑफ मसल्स एंड फैट. ये छुआर मसल्स बिल्कुल भी नहीं कि तार फैट बिल्कुल भी नहीं किंतु तमाने कहबा मैडम ता पेटटा तो काफी बड़ अच्छी बहुत फुली जाइए. से फुलाटा इज बिकॉज ऑफ वाटर इम्बैलेंस फ्लूइड इम्बैलेंस बॉडी जोगु ता पेटटा फुलीचे किंतु तार फैट आउ मसल क्वांटिटी बहुत कम तार. देन लेथर्जी एंड इरिटेबिलिटी. ताको बहुत हालिया लागिबो आ बहुत इरिटेट मध्य हबो. डर्माटोसिस तार स्किन गुड़ाक बहुत ड्राई है कि फ्लेकी हो जाइथिबो. सो दीज आर द सिम्पटम्स. क्योर इज व्हेन द फूड दैट द किड इज ईटिंग व्हेन इट इज सप्लीमेंटेड विथ protein, this kwashiorkor it will vanish. So these are again the symptoms of your kwashiorkor over here that has been shown. Now let us go to marasmus. Marasmus is a form of severe malnourishment caused by your deficiency of both your protein and your carbohydrate. एठी protein और carbohydrate दीटा जाकर deficiency रोची. Cause it occurs in children that don't ingest enough protein, calorie, carbohydrate and other important nutrient, usually due to poverty and scarcity of food. पॉवर्टी किंबा स्कार्सिटी ऑफ फूड रु से माने प्रॉपर खाद्य पाई न पाती नहीं आउ से माने सफर हुअंती मारास्मस रु. सिम्पटम्स अंडरवेट, लॉस ऑफ मसल एंड सबक्यूटेनियस फैट, skin is dry and brittle hair, then chronic diarrhea, respiratory infection, intellectual disability and stunted growth. सेमानंकर intellectual disability माने mental disability भी सेमानंकर आरंभ हो जाई थाए. जो छुआ आगुरु भल से पढ़ुथबा आमे देखिबा से छुआ रो पढ़ारे भी माने मनल जाउनी आ से ता पढ़ाटा भी इंटेलेक्टा भी डिक्रीज हो जाउची. Cure it supplementation of your diet with your adequate amount of protein and carbohydrate हेले ए marasmus टी eradicate हो जाई पारिबो. Again this is a caricature of a kid suffering from your marasmus. It is having sunken eyes, भितरु को गातुआ आखि अछि, thin bony face, rib गुड़ाक देखा जाउची and poor growth. तार growth एते properly हेई नाही. Then other nutritional deficiency are your night blindness, anemia, goiter, ricket, muscular dystrophy, beriberi, scurvy, etc. Now let us deal quickly with some disorders of your digestive system. आमे nutritional deficiency आमे deal कले एबे आमे disorders of digestive system आमे टिके देखि नबा. First is indigestion. Indigestion when we are taking in huge amount of food
फूड लेवलटा आम जदि अधिका बारंबार आम खाद्य खाऊचे कि आम टेंशन रे रोचे किंबा आमर आउ किछि मेडिकल कंडीशन आम भितर जदि थाए तो आमर इंडाइजेशन हेई थाए। Incomplete digestion usually accompanied by one or more of the following symptoms like your pain, nausea. Nausea माने आमर बांती हेबा आगुरु जो फीलिंग टा जो थाए आमे सेटा को nausea कहि थाउ। nausea, vomiting, heartburn, then acid regurgitation. acid regurgitation माने आमर जो पेट भितरु जो जूस टा आसे गैस्ट्रिक जूस टा जो आसे सेटा आम तंटी पाखे आमको टिके खटाड़िया लगे सेटा होचे acid regurgitation. then accumulation of gas and send out of a gas from the stomach. ए सबु symptoms आमे जदि देखिबा आमे indigestion रे आमे सफर करूचे. Some medical cases are also can also cause indigestion. They are your stomach cancer, thyroid disease, stomach ulcer, gastroparesis. Gastroparesis माने आमर gastric emptying टा properly हेई पाउनी किंबा irritable bowel syndrome. ए सबु गुडा करे जदि जने सफर करथुबो सेमानक मध्य रे indigestion देखिबा पई पाई थाउ. Constipation, it refers to the infrequent and difficult defecation caused by decreased motility of the intestine. जेते बेले fecal matter गुड़ाक बाहर को पास करिबारे difficulty हेई थाए सेते बेले आमे कहू जे constipation हेइची. Why this is happening? This is happening because the fecal matter, they are remaining inside the intestine for a long time. And when they are remaining inside the intestine, the water they are absorbed and the fecal matter are becoming very hard and it is becoming very difficult for your defecation. How we can treat this? Your common treatment is using your mild laxative such as your milk of magnesia. एटा आमे जदि ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जदि खाइबा आमर डेफिकेशन प्रोसेस टा टिके स्मूथ हे जाए. आ कॉन्स्टिपेशन काहे कि हे थाए आमर पुअर ईटिंग हैबिट उडा क पई हे थाए. देन इफ वी आर टेकिंग इनसफिशिएंट फाइबर आल्सो प्लांट प्रोडक्ट जदि आमे कम खाऊ सेते बेले भी कॉन्स्टिपेशन हे थाए. सो एठी 10 कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन दिया हेछि ताठु भी अधिका कॉजेस थाए किंतु एठी 10 कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन ए पिक्चर रे देखा हेछि. Then vomiting. Vomiting or your emesis is forcible expulsion of the contents of the upper GI tract through the mouth. आमर यूजुअली आमर फूड मटेरियल गुड़ाक केमिति ट्रैवल कले माउथ रु इसोफेगस, इसोफेगस रु स्टमक, स्टमक रु इंटेस्टाइन को जाइके तापरे बाहर को चल जाए. किंतु बेले बेले कौन हेई थाए जेते बेले स्टमक रु जिनस गुड़ाक आम पार्टी थ्रू रु बाहर को आसी जाए सेटा को आमे वॉमिटिंग कहूचे. हाउ इज दिस वॉमिटिंग ऑकरिंग? सो व्हेन signal is received, your contraction of your diaphragm and abdominal muscle is occurring. आमर diaphragm muscle और abdominal muscle टा contract होउची, abdominal pressure बढ़ुची, abdominal pressure बढ़िबा द्वारा आमर stomach टा squeeze होउची और stomach टा जते बेले squeeze होउची आमर stomach रे जहाँ भी content अछि ताहा बाहरी आसुची. ए बाहरी आसीबा पई आमर जो टर्म आमे जो यूज करछे एंटी पेरिस्टालसिस. एंटी पेरिस्टालसिस माने एबे उल्टा डायरेक्शन रे एबे फूड मटेरियल उडा का बाहरुची. या सहित आमर एलईएस लोअर इसोफेजियल स्पिंचर रिलैक्सेशन होउची, रेस्पिरेशन स्टॉप्स, रेस्पिरेशन बंद हो जाउची आ फूड कंटेंट उडा का पेटरु बाहर को चली आसंती एज कैस्केड ऑफ वॉमिट. This repeated vomiting, especially in infant, it causes dehydration and it needs immediate medical attention when there is repeated vomiting. Now let us see your jaundice. This jaundice is yellowish coloration of the sclera. Sclera माने हमरो white portion आखिर जोटा आमे सेटा को sclera कहि थाउ. So this yellowish coloration in sclera, skin, mucous membrane due to the build up of your yellow compound called the bilirubin because of improper functioning of liver. हमरो liver टी जते बेले properly function करेनी. आमे काहे कि कहबा liver टी properly function करूनी कारण bilirubin रो RBC रो degradation होउची liver रे
आरबीसी रो डिग्रेडेशन द्वारा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होची आउ से बिलिरुबिन टा जदि प्रॉपर्ली बाइल थ्रू रे डाइजेस्टिव सिस्टम को न आसुची ताहाले काहे कि आसी पारु नै कारण हमर लिवर टी प्रॉपर्ली फंक्शन करू नथिबो सेति पाई ए पिगमेंट टी आसुनी जेतेबे अधिक अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन हेई जाए हमर ए आखी हळदिया देखा जिबा स्किन टा द हळदिया देखा जिबा हमर आरंभ हुए. So there are three main categories of your jaundice. They are your pre-hepatic jaundice due to excess production of your bilirubin. जेतेबेले bilirubin अधिका produce होची सेतेबेले we suffer from your pre-hepatic jaundice. Then your hepatic jaundice because of your certain disorder inside your liver like your liver cirrhosis or hepatitis. आमर जिते लिवर रे लिवर सिरोसिस किंबा हेपाटाइटिस होता है सेते बेले भी आम लिवर टी प्रॉपर्ली फंक्शन करेनी आउ वी सफर फ्रॉम hepatic jaundice. Then extrahepatic jaundice due to blockage of your bile drainage by gallstone or cancer of the bowel or the pancreas. आमर जिते बेले बाइल आमर बाइल टा कोडी स्टोर होता है गल ब्लैडर रे स्टोर होता है जिते बेले बाइल रो फ्लो टा ब्लॉक हो जाए गलस्टोन हुए आउ बाइल रो फ्लो टा ब्लॉक हो जाए तो बाइल टा आउ डाइजेस्टिव सिस्टम को आसी पारे ना बाइल टा गल ब्लैडर भितर ही बहुत समय जाए रही था आउ बिलिरुबिन टा कौन हुए ब्लड स्ट्रीम भितर को चली जाए आउ ब्लड स्ट्रीम भितर को से एंटायर बॉडी को चली जाए आउ सेति पे हमरो येलोइश देखा जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर जॉन्डिस. द लास्ट इज योर डायरिया. Diarrhea is increase in frequency, volume and fluid content of fecal matter caused by increased motility of and decreased absorption of intestine. आमर इंटेस्टाइन भितर जिते बड़े एब्जॉर्प्शन टा कमी जाए कहीं इंटेस्टाइन 90% एब्जॉर्ब करी निए डाइजेस्टेड फूड आउ वाटर कंटेंट मध्य एब्जॉर्ब करी निए किंतु आमर जिते बड़े इंटेस्टाइन भितर ए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टा कमी जाए सेते बेले कौन हुए आमर लूज मोशंस आरंभ हुए अधिका अमाउंट ऑफ वाटर पास करे एलॉन्ग विथ फिकल मैटर सहित अधिका अमाउंट ऑफ वाटर बाहरी थाए. फ्रीक्वेंट डायरिया जदि हैला आम बॉडी रो वाटर लेवल कमी जाई थाए एंड दिस एंड आल्सो इट कॉजेस imbalance in the electrolyte inside our body. Because of this, the first treatment that should be done for your diarrhea is your drinking of your ORS. आमर फर्स्ट ट्रीटमेंट जोटा कि आम घर आरंभ करने दरकार जिते बड़े आमको डायरिया होता है सेटा हूँ आमर ORS रो गोटे पैकेट गोटे लिटर पानी रे गोलई देकी आमको सेटा पीवा दरकार. सेटा पीले आम बॉडी रो वाटर कंटेंटा भी नॉर्मल हो आम बॉडी रो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता सेटा भी नॉर्मल आसीजिवो. सो स्टूडेंट विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड योर एंटायर unit of your digestion and absorption and also your digestive disorders. Thank you and best of luck.